So, hello everyone. In this particular class, we'll be starting regression. Okay. So, the name of the chapter is regression analysis. Now, what is regression? Regression is a statistical method of estimating, you can say, or predicting the value of one unknown variable if the value of corresponding value of other variable other related variable, we must say, is given. Now, the most important thing is why I'm using this term related variable. Now, just note down here, everyone. In the chapter correlation, what you have studied? In the chapter correlation, you all have studied how to determine the degree of relationship between two related data. So, what is correlation? We can say that correlation is a bivariate statistical method of estimating the degree of relationship between two related data. So suppose you have got two related data and you know the degree of relationship. You know that degree of relationship can be measured and the value will be always greater than equal to -1 and less than equal to 1, where 1 means perfect positive correlation, -1 means perfect negative correlation, 0 means no relation. So suppose if there are two related data and now suppose you want to find out. Suppose the value of x is 1, then the value of y is 2. The value of x is 3, then the value of y is 7. Suppose if the value of x is 4, if you have to estimate what is the value of y, first of all, we have to represent the relationship in the form of an equation. So, using that particular equation, we can determine the value of y if the value of x is given. Or suppose if the value of x is given to you, the value of y is given to you, and if you have to estimate or predict the value of x, means you need to represent this two variable in the form of an equation. And how to determine that equation, we can calculate by using this particular chapter, regression analysis. So what is regression? We can say that regression is a statistical method of estimating or predicting the value of one unknown variable if the corresponding value of other related variable is given. Are you understanding? So how to determine? In order to determine, first of all, we need to determine equation first. And this equation is called regression equation. So with the help of this statistical method, let us determine the regression equation and then determine the value of one unknown variable if the value of corresponding variable is given to you. Other variable is given to you. Clear, everyone? So let's start with this. And so I have already made formula ready. Using this formula, I'll just show it on the screen. You can take the screenshot and also I'll forward you in the group the PDF copy of this particular formula. Okay. So now first of all, I'll be showing it on the screen. Just note down. So I have written all the formulas which you require to do this particular chapter, that is regression. So you can just see that you have two regression equations, one y on x and the other x on y. Clear? The general form of a regression equation is y equal to mx plus c if it is y on x. It means that if y is dependent on x, मतलब अगर y के वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, so we'll be using this formula, this form to determine the value of y if x is given.
if you have to determine the value of x, that is x is dependent on variable y, then you are going to use this formula x on y. Now in order to determine this equation, this and this, these are the two general form of regression equations. Clear? One is y on x, the other is x on y. X on y means x dependent on y, y on x means y dependent on x. Clear? So in order to determine this, there are several formulas. So how to determine this equation? So just note down this line. You can see that in order to determine the equation, the formula is y minus y bar equals to b, it's equals to byx into x minus x bar. All right, where what is the meaning of y bar? Y bar is nothing but mean. You know how to calculate mean of any variate? किसी भी अगर मान लो डेटा का मुझे मीन निकालना होगा तो मीन कैसे निकाला जाता है? इट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द डेटा. एवरेज मतलब समेशन ऑफ y. व्हाट इज y bar? Y bar is summation of y divided by the number of variate and number of data we have there. Clear? So y bar मिल गया. x bar क्या है? Same. तो as you know that it is a bivariate statistical method, मतलब दो वेरिएबल होगा. तो अगर मान लो हमको x bar निकालना होगा तो क्या होगा? Sigma x divided by n. All right, everyone. So in both the formula, you can find that y bar, clear, and x bar will be same. Is this clear, everyone? In both the equations, you can see that y bar and x bar is same. All right, everyone. Next, how to determine byx? What is the meaning of byx? Byx is called regression coefficient of y on x. And how to determine bxy? This is called regression coefficient of x on y. Alright, now let's move ahead and see how to determine regression coefficient. So see, there are several formulas to determine regression coefficient. It is 1, 2, 3 and 4. Now in formula number 1, we determine regression coefficient by using formula number 1. If R means correlation coefficient, then standard deviation of y by standard deviation of x. What does the symbol denote? It is the representation of standard deviation. As you have got two data, so this means standard deviation of y, and the denominator one represents standard deviation of x. Clear? So suppose r, that is correlation coefficient, and standard deviation of both the data x and y, both the variables x and y are given to you. You can use this formula to determine the regression coefficient. And to determine regression coefficient of x and y, use this formula. Again, now we see the second formula, and here it is written that the symbol is standard deviation symbol, and standard deviation equals to square root of variance. Where what is r? R is correlation coefficient. You know, you have studied in correlation chapter how to find out correlation coefficient. But in this chapter, regression, it will be 99% in the case correlation value will be given. Okay, next. Let us move ahead with the second formula. Second formula is used if suppose, we use second formula if suppose, let's take the value of the variable x and y are given to you, then we use the second formula. First, in order to use the second formula, we determine x bar and y bar. Now, why do we need x bar and y bar? Because, just note down, what is the meaning of dx? dx means deviation. स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन वर्ड क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है. हम लोग बोलते हैं ना 4 और 2 का डिफरेंस क्या है? 4 - 2. 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? 4 - 5. स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन बोलते हैं. तो यहां पे सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, व्हाट डज dx मींस? dx मींस द डेविएशन ऑफ वेरिएट x फ्रॉम इट्स मीन. मतलब उसके मीन का जो डिफरेंस है उसको dx से डिनोट करते हैं. मतलब ये dx क्या डिनोट करता है? डेविएशन ऑफ वेरिएट x फ्रॉम इट्स मीन. मतलब x वाला डेटा का जो कॉलम है उसका मीन निकालो और डिफरेंस निकालो. ये x और x बार मतलब मीन का जो डिफरेंस होता है इसको dx से डिनोट करते हैं. सिमिलरली dy मींस y माइनस y बार. ठीक है, ये निकालने के बाद देखो ध्यान से उसके बाद कैसे मिलेगा. आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड dx एंड dy, जिसके लिए x बार y बार चाहिए, तो हम लोग bxy कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करके. ठीक है, आई जस्ट शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, डोंट वरी. फर्स्ट कंसंट्रेट कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट. इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है, जस्ट नोट डाउन, तीसरा वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे मैंने नोट दिया है. व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू
आर यूज्ड, मतलब अगर मान लो हम लोग कभी कभी होता है कि क्या होता है कि x बार y बार डेसिमल में आ जाता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सपोज रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है और हम लोग ने x बार y बार निकाला, ठीक है, और x बार y बार हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि वो डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो फिर ये फॉर्मूला को मत यूज करना नंबर 2 वाले, बिकॉज इन नंबर 2 व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग x माइनस x बार विच इज इन डेसिमल, द सम विल बिकम unnecessarily complicated. I mean the calculation will become complicated. Though you all have got calculator, but then also the calculation will become very complex. So let us avoid this and directly use this second formula. Sorry, the third formula. Clear everyone? x बार x और y क्या है? नॉर्मल जो वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग x और y से डिनोट कर रहे हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग? जब x बार y बार डेसिमल में है एंड x और y बहुत लार्ज है, जैसे कि मान लो 99, 98, 22, 23 इस तरह का है, तो हम लोग लास्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे u और v का मतलब क्या है बताओ तो? u मीन्स डेविएशन ऑफ वेरिएट दैट इज वेरिएबल x फ्रॉम इट्स अज्यूम मीन। अभी अज्यूम मीन क्या होता है? अगर मान लो सपोज 1 2 3 4 5 7 है, यहाँ पे 4 को अज्यूम कर दो, ठीक है। तो अज्यूम तुमको पता है स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो u का मतलब हो गया x माइनस अज्यूम इन ऑफ x एंड v का मतलब क्या है? y माइनस अज्यूम इन ऑफ y, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में बहुत कम डिफरेंस है, बस यहाँ पे x और y की जगह पे u और v से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूला। नाउ देयर इज वन मोर पेज, बट इन दिस पेज यू हैव द फॉर्मूला टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, और एक है लास्ट ये दो फॉर्मूला जहाँ पे रिलेशनशिप है फिफ्थ नंबर फॉर्मूला में कोरिलेशन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे जब सम कराएंगे। तो अभी फिलहाल जो मैंने इस पेज में जो समझाया था, यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस पेज एंड लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? So now after the explanation, okay, now just see, we are going to apply whatever we have studied in the explanation part, okay. Now see, just note down here everyone. From OP Malhotra, take out OP Malhotra book. We are doing example 9, okay. I have already solved almost 70% of the sum, or 80% you can say, okay. Now just not to save the time. And now I'll be determining, just see, you are given in this sum, let me tell you, इसमें दिया क्या, what are the things given to you? You are just given two things, that is x and y का डेटा दिया हुआ है। x का डेटा क्या दिया हुआ है? 1 3 4 ऐसे करके सारा चीज दिया हुआ है 14 तक, और y का जो डेटा है वो दिया हुआ है 1 2 4 5 ऐसे करके दिया है। These are the things given, okay. These two data are given to you. Now in this sum, what we have to determine is the regression equation. One y on x and the other x on y. Now you can just clearly see in the formula, in order to determine regression equation, we need total 4 things. What are those 4 things? Just clearly see on the formula page. You can see it's y bar, x bar. In both the equations it is same. 2 things, x bar, y bar, 2 हो गया, byx and bxy, 2 2 4 चीज निकालना है। तो हमको सबसे पहले x bar चाहिए, x और y को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, और x बार निकालने के लिए यू नो दैट x बार इज समेशन ऑफ x बाय n, इसका मैंने समेशन निकाला 56 है, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आ गया, y बार मतलब टोटल इसका समेशन जो कि 40 है डिवाइडेड बाय इट दैट इज 5। ऑलराइट, आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड x बार y बार, जो कि हमको फॉर्मूला में y on x की फॉर्मूला निकालने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x और x on y में चाहिए, और 2 चीज चाहिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। bxy मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y, बट एक्चुअली आई हैव जस्ट रिटन हियर बाय मिस्टेक, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, clear, y on x, and this is regression coefficient of x on y. All right everyone? Yes, is this clear? x on y, ठीक है, और ये y on x है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि यहाँ पे x बार y बार डेसिमल में नहीं है, तो क्यों ना हम लोग पहला फॉर्मूला मतलब क्यों ना हम लोग ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ये वाला सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला। तो मैंने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें फॉर्मूला में, अगर तुम ध्यान से नोट करो, सो व्हाट आर द थिंग्स देयर इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला? वी नीड bx इंटू by, ठीक है। हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए? dx इंटू dy, नॉट, मैंने b बोला गलती से, रिफ्लेक्शन पे उल्टा आ रहा था, dx इंटू dy चाहिए,
dx मतलब पता है क्या होता है और dy मतलब क्या होता है ये ना, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कॉलम बना लिया जो जो चाहिए। dx का एक कॉलम बना लिया, dy का दूसरा कॉलम बना लिया, dx इंटू dy का एक कॉलम बना लिया, इसका स्क्वायर का एक कॉलम बना लिया और dy का स्क्वायर का एक कॉलम बना लिया। dx मतलब x माइनस एक्स बार, दैट इज x minus 7. So what is 1 minus 7? Minus 6. 3 minus 7 is minus 4. 4 minus 7 is minus 3 and so on. Same way dy is y minus y bar. तो y minus y bar मतलब 5. तो 1 minus 5 is minus 4. 2 minus 5 is minus 3 and so on. Clear? इसके बाद ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो. Minus 6 into minus 4 24. Minus 4 into minus 3 12. ऐसे करके निकालो. d square x मतलब इसका इंडिविजुअल डेटा का स्क्वायर लेके करके यहाँ पे लिख दे. इसका मतलब dy का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका समेशन निकालो, इसका सिग्मा निकालो, इसका सिग्मा निकालो। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड d स्क्वायर x विद सिग्मा dx का होल स्क्वायर गलत चीज, ये दोनों एक चीज नहीं है। d स्क्वायर x मतलब हमको डेविएशन का स्क्वायर का समेशन निकालना है, समझ में आया बात। अब देखो, अब हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया ये बस dx सिग्मा dx dy के जगह पे 84 पुट कर दिया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की जगह पे 132 और इसको डेसिमल फॉर्म में मत रिप्रेजेंट करना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इसको रिड्यूस करके और फ्रैक्शन फॉर्म में ही रख देना। सेम वे बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। करने के बाद अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, देयरफॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is given by y minus y bar equals to byx into x minus x bar, ठीक है। तो y minus y bar मतलब y minus y bar मतलब क्या है 5, byx कितना है 7 by 11 और x minus x bar में x bar क्या है, x bar is 7, क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट द आंसर। और चीज, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देखो ध्यान से नोट करना। यू नो दैट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म y मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट, क्लियर, y को सब्जेक्ट बना करके y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना और x on y में x को सब्जेक्ट बना के इस फॉर्म में लिखना। समझ में आया तो बात, तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो y को सब्जेक्ट बनाना है हम लोग को यहाँ पे, clear? So what is y? Y is 7x plus 6 divided by 11. It is better if we write this as, clear? Is this clear? So this is regression equation of y on x, and the regression equation of x on y x minus x bar equals to bxy into y minus y. All right, अब बस इसमें सारा वैल्यूज पुट कर देना and then after substituting the value I'm writing the answer directly by copying from the book. It is how much? It is 2, it is just a minute, it is x equals to 3y minus 1 divided by 2. I hope it is clear. x bar y bar bxy, बस यहाँ पे पुट करके I've already solved this, I'm just directly writing the answer. I hope it is clear. So these are the two equations. One represents regression equation of y on x और दूसरा x on y. इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी मेंशन रहेगा, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर ये मेंशन किया मतलब y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमको y on x निकालना है, मतलब y यहाँ डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट, मतलब ये बोला है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन वेयर x इज अ डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट, तो ये निकालना, समझ में। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो लोगों को सपोज इधर से सपोज x का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज लेट्स टेक 60 और हम लोग को y का वैल्यू एस्टिमेट करना है, तो बताओ तो तुम लोग सोचो एक बार, तुम लोग दिमाग लगा के कि अगर हमको x का वैल्यू दिया है, y एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो दोनों में से कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला, बिकॉज y यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और किसी को भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, y और x वाले पे ही हम y को सब्जेक्ट बना सकते हैं, x और y वाले इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बना सकते हैं,
तो यहाँ पे अगर y एस्टिमेट करना है तो फिर y और x में x का वैल्यू पुट कर देना 60, और मान लो अगर x का वैल्यू y का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 14 और x एस्टिमेट करना है हम लोग को, मतलब y का यहाँ वैल्यू पुट कर देना 14, यू गेट द वैल्यू ऑफ x. आई होप इट इज क्लियर विद दिस सम कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर में. क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल सी वन मोर सम. Now let us take the next question, that is example 11. Okay, all right students, let's take example number 11. Let me show you on the screen the question first. Okay, that if you don't have book you can take the screenshot of this page. Clear everyone? You can take the screenshot of this page and you can do this sum. Okay, all right, have you taken the screenshot? Fine. Now let's move ahead. So everyone see example number 14. In example number 14, see, I'm sorry, example number 11, I'm sorry, okay. Example number 11, जो मैंने अभी screen पे दिखाया. Now, what are the things given to you? In example number 11, we are given the first thing which is given to us is sigma x. And what is sigma x? It is 510. We know sigma y, which is 7140. We know sigma x square, which is 4150. We know sigma xy, which is 54900. We know sigma y square, which is 740200. Now let us read the question once again as I show you on screen. An analyst for a certain company was studying the relationship between the travel expenses for 102 sales trips and the duration of days x. x क्या डिनोट करता है? ड्यूरेशन ऑफ डेज. y क्या डिनोट करता है? ट्रेवल एक्सपेंसेस डिनोट करता है. He found the relationship between y and x is linear. So he represented in order तो उसका समरी दिया हुआ था, मतलब सिग्मा x का सिग्मा y का सबका समरी दिया हुआ. एस्टिमेट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, मतलब इस डेटा को दिया हुआ डेटा से 2 रिग्रेशन इक्वेशंस एस्टिमेट करो, मतलब कैलकुलेट करो, डिटरमाइन करो, मतलब एक बार y on x और एक बार x on y. क्लियर एवरीवन? तो सबको एक बार अपने खुद से कैलकुलेशन करो. ठीक है, डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x and x on y first everyone. So note down here, I have already solved the sum here. Okay, so we know the value of x bar, which is sigma x by n. 510 by 102 is how much? You know that it's already given in the question that for how many sales trips? For 102 sales trips. So can I say that the value of n is 102? कितने सारे सेल्स ट्रिप्स के लिए डेटा दिया हुआ है? 102 सेल्स ट्रिप्स के लिए. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके 5 है, सिग्मा y बार आया 70, तो ये x बार y बार मीन हो गया. BYX इस सब में हम लोग को सिग्मा x सिग्मा y सारे वैल्यूज दिए हुए, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा? द फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पे जो मेंशन है. ठीक है, तो यहाँ पे सारा मतलब मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, पुट करके यहाँ पे 12 आया. दूसरे वाले केस में जो है ना फ्रैक्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वैल्यूज आ रहा था, जैसे कि इट्स ऑलरेडी देयर 48/601, तो उसको मैंने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अब इक्वेशन निकालें. Therefore the regression equation of y on x is given by it is y equal to 12x plus 10, or regression equation x on y is given by x equals to 0.08 y minus 0.6. All right everyone, now just note down the second part. ये तो पहला पार्ट था, ये था पहला पार्ट. इसके अंदर 2 क्वेश्चन है. पहला पार्ट में हमको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना था, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना था? देखो लिखा हुआ है, अ गिवन ट्रिप हैज टू टेक 7 days. नाउ प्लीज नोट डाउन, हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज को x से डिनोट किया जाएगा. मतलब यहाँ पे हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या है? 7 है. मतलब नंबर 2 में when the value of x is 7, क्या डिटरमाइन करना है? हाउ मच मनी शुड अ सेल्समैन बी अलाउड सो दैट ही विल नॉट रन शॉर्ट ऑफ मनी. मतलब हम लोग को एस्टिमेट करना है कि अगर मान लो मैं किसी सेल्स पर्सन को 7 दिन के लिए ट्रिप पे भेजता हूं, तो इसके हिसाब से व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंस. यू नो दैट एक्सपेंस को देखो लिखा हुआ है, एक्सपेंस को y से डिनोट किया जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ डेज को x से डिनोट किया जा रहा है. तो ड्यूरेशन ऑफ डेज 7 days है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब हम किस में पुट करेंगे? पहला वाला में या दूसरा वाला में? ऑब्वियसली पहला वाला.
तो पहला वाला में हम लोग 7 पुट कर देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देन? द वैल्यू ऑफ y इज 94. इसका मतलब उसके 7 दिन के ड्यूरेशन में उसका टोटल ट्रिप का एक्सपेंसेस कितना आएगा? 94 रुपीज. Alright students, you can write in what. Now everyone see the next question, that is number 12. But I think the number 12 हो जाएगा. ये it's एकदम similar type है. Now the most important sum is example 14. ये समझ में आ जाता है तो पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 देखना एक बार सबको. Now everyone see, let us take the next question, and that is example 14. Let me show you on the screen first. You can take the screenshot. If you don't have the book, you can take the screenshot. This is example number 14, and this is the last type sum which is there in regression chapter. I think I have, it's visible. Okay, next let's start. So just note down, in this sum you are given 2 regression lines. Okay, note down. In example number 14 on 4, you are given 2 regression lines. The regression equations are four x plus 3y plus 7 equals to 0. Mark it as 1. 3x plus 4y plus 8 equals to 0. Let us mark it as equation number 2. See, it is impossible to determine which regression equation, if you are given 2 regression equations, it is not possible to identify which one is regression equation of y on x and which one is x on y. It's not possible to determine just by looking at the equation. So now in this sum you have got several sub questions in it. The first question is, what is the mean of x and y? मतलब what is the mean of x and y means what is the value of x bar and y bar, हम लोग को ये निकालना. ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग ने 2 इक्वेशंस जब निकाला है, रिग्रेशन इक्वेशंस का जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला में तुम एक चीज ध्यान से नोट करना. इस फॉर्मूला में एक चीज ध्यान से नोट करना तुम. व्हाट वी आर फाइंडिंग, आई हैव यूज्ड x bar, y bar, I mean the same value of x bar and y bar to determine both the regression equations. All right, now if you see properly, you find that 2 lines if plotted on the same plane, मतलब एक ही ग्राफ पे मैं प्लॉट करूं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, मतलब ओवरलैपिंग लाइंस होगा. अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? तुम ध्यान से नोट करो. व्हाट इज अ कॉमन पॉइंट? इट इज x बार एंड y बार इज अ कॉमन पॉइंट. नाउ टेल मी, साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर में तुम लोगों ने क्या सीखा है बताओ तो, कि अगर 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम लोग, सपोज ये 2 इक्वेशन है, इसको अगर मान लो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, x का वैल्यू और y का वैल्यू जो मिलता है वो क्या होता है? दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है. तो वेरी सिंपल, हाउ टू डिटरमाइन x बार एंड y बार? जस्ट सॉल्व द 2 रिग्रेशन इक्वेशंस विदाउट नोइंग which one is y on x, which one is x on y. इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको पता भी होता तो हम सॉल्व करके साइमल्टेनियसली एक वही आता है x और y का वैल्यू, और नहीं भी पता है तो वही आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली और x और y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या होगा बताओ तो. अगर हम यहां से देखें तो दोनों में हम लोगों ने कॉमन x बार y बार यूज किया. देखो तो क्या आएगा बताओ तो, वो आएगा x बार और y बार. मतलब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. क्या निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए. सो मेक श्योर दैट 2 regression equations intersect each other at a point whose x coordinate is the mean of the data and y coordinate is the mean of y वाला डेटा. मतलब जो मीन होगा x बार y बार वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट x का मीन होगा, y कोऑर्डिनेट y का मीन होगा. तो लेट अस सॉल्व
both these equations simultaneously. So solving equation 1 and 2, we get, if you solve both the equations, we will get the value of x equals to minus 4 by 7, you can see, and the value of y equals to minus 11 by 7. So what is the value of x bar? X bar is minus 4 by 7 and y bar is minus 11 by 7. निकल गया? ये है हमारा पहला पार्ट. अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन रीड करो तो पहला पार्ट है मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई क्या है निकालो. दूसरा पार्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालना, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई. अब ध्यान से एक चीज नोट करो तुम लोग, x1 देखो y और x वाला इक्वेशन में देखो तो एक बार ध्यान से y और x वाला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है देखो तो मल्टीप्लाई करके इसको दोनों से, इसको अगर हम दोनों से मल्टीप्लाई करें तो x का कोएफिशिएंट क्या डिनोट करेगा बताओ तो by(x) और x और y वाला इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या डिनोट करेगा bxy. व्हाट इज by(x) टर्म्ड एज कॉल्ड एज बताओ तो इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y और x बोलते हैं, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y. बट इस समय प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम यही तो है कि तुमको पता नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x है और कौन सा x और y है, यही तो नहीं पता हम लोग इस समय. तो हम लोग क्या करेंगे, लिसन हियर. नाउ यू कैन रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड दैट वी हैव फ्यू मोर फॉर्मूलाज व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर ऑन. नाउ नोट डाउन नंबर 5. नंबर 5 में ध्यान से नोट करना, ये जो फॉर्मूला है R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग ये सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं जिसको हम लोग RHO रो पढ़ते हैं. ये P नहीं है, प्लीज नोट डाउन, P नहीं है, इसका सिंबल का नाम क्या है रो, RHO. दोनों का मतलब एक ही होता है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट को R से भी डिनोट किया जाता है, रो सिंबल से भी डिनोट किया जाता है. अब ये जो है फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है पता है, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. और याद रखना correlation coefficient is nothing but geometric mean of the regression coefficients. Note down, I repeat once again, R क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इतना तुमको ज्योमेट्रिक मीन वाला टर्म समझ में नहीं है तो बस इतना समझना कि R जो है किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. अब ध्यान देना, क्या स्क्वायर रूट के अंदर में साइन नेगेटिव हो सकता है, नहीं. तो वेरी सिंपल, अगर मान लो देखो ये तरीका से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी पॉसिबल हर केस में नहीं होगा. अगर मान लो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर दोनों का सेम साइन हुआ तभी जाके ये पॉसिबल है. मतलब अगर bxy by(x) दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तभी जाके ये फॉर्मूला पॉसिबल होगा. प्लीज नोट डाउन, ठीक है. बोथ bxy एंड by(x) अगर दोनों पॉजिटिव है तभी या दोनों नेगेटिव हुआ तभी जाके फॉर्मूला पॉसिबल है. मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का साइन सेम होगा. तो दूसरा, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन या इक्वल टू 1 हुआ तो, बिकॉज R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या उसका वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, R का वैल्यू का रेंज ये होगा. तो याद रखना, अब हम लोग हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी हमको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है वहां हमको bxy by(x) का जरूरत पड़ता है. अगर तुमको फिर भी अगर थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होना है, अपने आप को सेटिस्फैक्शन लाना है कि हाँ मेरा तसल्ली लाना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो जो by(x) और by(xy) जो तुम लोगों ने दोनों निकाला है वो दोनों का साइन सेम होना चाहिए. पहला बार प्लस प्लस माइनस माइनस. दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट 1 या तो 1 से लेस होना चाहिए. अगर 1 से ज्यादा है तो सोचना कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया तुमने. 1 से लेस है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का साइन सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. याद रखना, ये नहीं कि दोनों का साइन सेम है और दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, ऐसा नहीं. ओके ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ. ओके, एंड द पॉइंट इज वी नीड टू डिटरमाइन, सो by(x) bxy का साइन सेम होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन या इक्वल टू. तो एक काम करते हैं, पहला वाला इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं. काम करते हैं, लेट अस अज्यूम equation 1 as regression equation of y on x and equation 2 as regression equation of x on y. All right,
तो ये एक अजम्पशन कर लेते क्योंकि थोड़ी ना हमको पता है कौन सा क्या है। तो पहला वाला को अगर हम y on x अज्यूम किए तो फिर इसको हम क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? यू नो दैट जो रिग्रेशन इक्वेशन y on x होता है वो किस फॉर्म में होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू, क्लियर? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है, y on x वाला में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? byx होता है, ठीक है? एंड जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको मैंने क्या अज्यूम किया? यहां लिख देता हूं मैं y on x, ठीक है? समझ में आएगा। दूसरा वाला क्या है? x on y अज्यूम किया मैंने। तो दूसरा वाला को मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू mx प्लस c लिख दूंगा। तो अगर हम x इक्वल टू mx प्लस c लिखें तो ये हो जाएगा -4/3y माइनस 8/3। All right, students. Now, the question is कि क्या मेरा assumption right है? Let's check the condition. क्या कि दोनों bxy yx दोनों का सेम साइन होना चाहिए, ठीक है, सेम साइन है। दोनों का प्रोडक्ट भी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। Since both byx and bxy are positive, sorry, negative, but byx into bxy का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करो is 16/9 which is not less than 1, it is greater than 1, this is not possible, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है, ये जो हम लोग ने assumption, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 ही होना चाहिए या इक्वल टू 1। क्यों बोलो तो? क्योंकि हमको पता है कि आर स्क्वायर क्या होता है? byx इंटू bxy का प्रोडक्ट, और आर होता क्या है? आर इज नथिंग बट रैंक, आई मीन सॉरी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर का रेंज क्या होता है? -1, 1 और उसके बीच में। तो फिर ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको यूज करके हम आर निकालेंगे तो वो कंडीशन ही, तुम्हारा जो आर का जो रेंज है वो तो क्रॉस कर जाएगा, उसके बाहर चला जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, obviously there is only one now option left. What is that? Let us interchange the assumption. हम लोग का assumption गलत है, तो फिर करेक्ट क्या होगा? इसको मैंने क्या लिया था इक्वेशन 1 को? y on x, तो इक्वेशन 1 हो गया x on y। इक्वेशन 2 को क्या लिया था? x on y, तो ये हो गया y on x। पहला वाला को लिया था y on x, तो ये हो जाएगा x on y। अब हमको पता चल गया कि कौन सा क्या है, क्योंकि मेरा assumption था कि पहला वाला क्या है? y on x, तो पहला वाला y on x लिया था तो वो गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो पहला वाला हो गया होगा x on y और दूसरा वाला हो गया y on x। समझ में आया? तो बात समझ में आया? अब एक बार ये पता चल गया, उसके बाद तो क्या दिक्कत है? उसके बाद तो हम लोग आराम से रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो निकाल ही सकते हैं। It is not possible, so our assumption is wrong. Therefore, the regression equation x on y is the first one, clear? Where we can write this as x equal to -3/4y minus 7/4, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? y का कोएफिशिएंट x on y में y का कोएफिशिएंट क्या होता है? x on y में y का कोएफिशिएंट क्या होता है? bxy। And the regression equation of y on x is given by second one, that is we can write this as y equal to 3/4x minus 4/8. All right everyone, therefore byx equals to -3/4. all right everyone, हो गया? अब तुम देखो दोनों का साइन सेम है, और तुम देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखो 9/16 जो कि लेस देन 1। समझ में आया? तो बात हमको जो सेकंड क्वेश्चन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालना था, मिल गया। ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो तीसरा वाला में क्या बोला है? व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट? मतलब ये जो दो डेटा है ना x और y, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है? सो वी नो दैट r square equals to bxy into byx,
क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 9/16, आर क्या होगा प्लस माइनस 3/4, बट नाउ द क्वेश्चन इज आर स्क्वायर इतना है तो आर क्या होगा प्लस माइनस 3/4, पता है ना फॉर्मूला ये, तो कोई अपने से नया नहीं दे दिया, यही फॉर्मूला है आर स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट है तो आर स्क्वायर क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो फिर एक बात बताओ, आर इतना है तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ध्यान दें, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेना, ठीक है। दोनों, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, रीजन क्या लिखा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव लिया, दोनों पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बात समझ में आ सबको। और अगर मान लो इसमें और एक क्वेश्चन होता कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 4, तो भी तुमको रिग्रेशन इक्वेशन ये सब तुमको करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक तुमको ये नहीं पता है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है और कौन सा x ऑन y, तब तक तुम ये निकाल नहीं पाओगे। तो अगर मान लो y का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो हम x निकालने के लिए x ऑन y वाले में पुट करेंगे, और सिमिलरली अगर y निकालना है x दिया है तो y ऑन x y। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ मेक श्योर दैट दीज आर द ऑल टाइप क्वेश्चंस। और अगर तुम्हारा ये सारा जो मैंने आज टॉपिक में करा है अगर ये क्लियर है, आई एम 100% श्योर यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी इन द व्हाट्सएप एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। आई विल सेंड यू व्हाट आर द होमवर्क्स यू हैव टू डू इन द, आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप। So this much for I mean there in the class, today's class in this particular top video. Thank you everyone.